Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Functions of the stem. Some of the functions of the stem are given below. It provides support to different parts of the plant and holds the plant upright. Stem helps branches and leaves to spread out. This helps leaves to receive sufficient sunlight to carry out photosynthesis. Stem transport water and minerals from root to leaves. It also carries food manufactured by leaves to different part of the plant. Stem यह पार्ट प्लांट के जो भी पार्ट हैं उनको सपोर्ट देता है. स्टेम ब्रांचेस और लीव्स को स्प्रेड करने में हेल्प करता है और यह लीव्स को फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए सफिशिएंट सनलाइट मिल सके इसमें हेल्प करता है. स्टेम वाटर और मिनरल्स को रूट में से लेकर और प्लांट के दूसरे पार्ट तक पहुंचाता है. Modification of stems. In some plants, the stems are modified to perform a special function according to the need of the plant. Some of the stem modifications are given below. First, food storage. Stems in some plants such as ginger, potato, and onion grow under the ground. These underground stems are modified to store food. Common types of underground stems are tubers such as potato, rhizomes such as ginger and bulbs such as onion. कुछ प्लांट्स में स्टेम ऐसे मॉडिफाइड होते हैं जिससे प्लांट्स के नीड के अकॉर्डिंग स्पेशल फंक्शन होते हैं. कुछ प्लांट के स्टेम जैसे जिंजर, पोटैटो, ओनियन ये अंडरग्राउंड ग्रो करते हैं. अंडरग्राउंड स्टेम फूड स्टोर करता है जैसे अंडरग्राउंड स्टेम के कॉमन टाइप्स जैसे पोटैटो के में ट्यूबर, जिंजर में राइजोम्स और ओनियन में पल्प होते हैं. प्रोवाइड सपोर्ट्स. स्टेम ऑफ क्लाइंबर्स सच एज ग्रेपवाइन, cucumber, sweet pea and passion flower are modified into thread-like, spirally coil-like structures. These structures are called stem tendrils. Tendrils wrap themselves around nearby object and provide support to the plant. क्लाइंबर्स के जो स्टेम जैसे ग्रेपवाइन, कुकुम्बर और स्वीट पी थ्रेड लाइक स्पाइरली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं जिसे स्टेम टेंड्रिल्स कहा जाता है. ये टेंड्रिल्स जो भी पास के जो ऑब्जेक्ट हैं उसके आसपास रैप हो जाते हैं, लिपट जाते हैं और प्लांट्स को सपोर्ट देते हैं. स्टोरेज ऑफ वाटर. प्लांट्स दैट ग्रो इन डेजर्ट सच एज कैक्टी हैव थिक फ्लैशी स्टेम्स. फोर्थ, manufacture of food. Stems of some plants such as cactus become flattened. These flattened stems look like leaves and perform photosynthesis. Fifth, for protections. Stems of plants such as rose, lemon, bougainvillea, raspberry are modified into thorn-like structures to protect the plant from predators. जो प्लांट डेजर्ट में ग्रो करते हैं उसे थिक फ्लैशी स्टेम होती है जैसे कैक्टस. और कुछ प्लांट्स के स्टेम फ्लैटेंड होते हैं, मीन्स चपटे होते हैं जैसे पत्तों की तरह दिखती है जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं. और कुछ प्लांट के स्टेम में जैसे रोज़, लेमन, रास्पबेरी यह कांटों की तरह स्ट्रक्चर होता है जिसे प्लांट्स को प्रेडेटर्स या शिकारियों से बचाया जा सके. A leaf is a thin, flattened part of a plant that appears from the nodes of the stem and branches of a plant. The green color of the leaves is because of the presence of the pigment called chlorophyll. Leaves are of different shapes and sizes. A typical leaf has a petiole, lamina, and veins. A leaf is attached to the stem or branch with a stalk called petiole. The broad, expanded flat part of the leaf that is generally green in color is called
the leaf blade or lamina. Thin clear lines on the lamina of a leaf are called veins. Midrib is the main vein that branches out to form smaller veins. Veins help in transportation of food and water in leaves and also support the leaf structure. Leaves. Leaves are of different shapes, size, colors and texture. Most plants have green leaves. Leaves prepare food from the plant. Parts of a leaf are shown in figure. लीव्स के अलग अलग साइज, शेप और अलग अलग बनावट होती है. मोस्ट प्लांट के ग्रीन लीव्स होते हैं और लीव्स प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर करते हैं. यू कैन सी इन द पिक्चर पार्ट्स ऑफ अ लीव. द फ्लैट ग्रीन पोर्शन ऑफ द लीफ इज कॉल्ड द लीफ lamina or leaf blade. Photosynthesis take place in the portion. लीफ का जो फ्लैट ग्रीन पोर्शन होता है जिसे लीफ लैमिना या लीफ ब्लेड कहते हैं, इस पोर्शन में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है. A tube-like structure in the center of the leaf is called the midrib. It extends from the petiole till the tip of the leaf. लीफ के सेंटर में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे मिडरिब कहते हैं. ये लीफ के टिप से पेट्यूल तक होती है. Thin lines that arise from midrib run across the leaf in various directions are called the veins. These veins provide support to the leaf and transport water and minerals and food to from the leaf. मिडरिब से जो पतली लाइंस होती है जो अलग अलग डायरेक्शन में, उसे वेन्स कहते हैं. ये वेन्स वाटर और मिनरल्स लीव से ट्रांसपोर्ट करती है. लीव्स आर अटैच्ड टू द स्टेम बाय अ स्मॉल स्टॉक कॉल्ड पेट्यूल. लीफ जो है वह स्टेम से अटैच रहता है, तो जो स्मॉल स्टॉक होता है उसे पेट्यूल कहा जाता है. अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन अ लीफ is called venation. Two main type of venation seen in leaves are given below. Reticulate venation. In reticulate venation, the veins are arranged just like nets on both sides of midrib. For example, peepal and mango. Parallel venation. In parallel venation, the veins run parallel to each other. For example, maize, wheat, coconut, grass and banana. लीफ के जो वेन्स का अरेंजमेंट होता है उसे वेनेशन कहते हैं. लीव्स में ट्यूब टाइप के वेनेशन होते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन. रेटिकुलेट वेनेशन में वेन्स का अरेंजमेंट नेट की तरह होता है, जाली जैसा, जो मिडरिब के दोनों साइड में होता है, जैसे पीपल और मैंगो इसके एग्जाम्पल हैं. पैरेलल वेनेशन में वेन्स एक दूसरे के पैरेलल में होते हैं, जैसे बनाना लीफ आपने देखा होगा, वो पैरेलल वेनेशन है. जैसे व्हीट, कोकोनट, ग्रास, बनाना लीफ इसके एग्जाम्पल हैं. फंक्शंस ऑफ अ लीफ. सम ऑफ द फंक्शन ऑफ लीफ आर गिवन बिलो. लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, सो लीव्स आर कॉल्ड द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट. लीव्स एक्सचेंज गैसेस थ्रू tiny pores called stomata. Stomata are present on the under surface of the leaves. Water comes out of the leaves in the form of water vapor to the stomata. This process of loss of water is called transpiration. Leaves photosynthesis की प्रोसेस को में अपना फूड बनाते हैं, इसलिए लीव्स को फूड फैक्ट्री कहा जाता है. लीव्स में टाइनी पोर्स होते हैं जिसके द्वारा वह गैस को एक्सचेंज करते हैं, जिसे स्टोमेटा कहा जाता है. यह लीव्स के अंडर सरफेस में होते हैं. स्टोमेटा से वाटर वेपर के फॉर्म में लीव्स से पानी निकलता है. इस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन कहा जाता है. मॉडिफिकेशंस ऑफ लीव्स. In some plant, leaves are modified to perform a special function. Some of the leaf modifications are given below. First, for additional support. In some plant with weak stems such as Gloriosa lily and pea, the leaves are modified to form soft
coiled wire-like structures called leaf tendrils. Whenever the tendrils come in contact with an object, they coil around it. This provides additional support to the plant and helps the plant to climb up. कुछ प्लांट के लीव्स स्पेशल फंक्शन के लिए मॉडिफाइड होते हैं. एडिशनल सपोर्ट कुछ प्लांट की वीक स्टेम होती है, जैसे क्लोरेसिया, लिली एंड पी. इसके लीव्स ऐसे मॉडिफाइड हो जाते हैं जैसे थिन वायर लाइक स्ट्रक्चर में, कॉइल स्ट्रक्चर में, जिसे लीफ टेंड्रिल कहते हैं. ये टेंड्रिल अपने किसी भी नियर बाय ऑब्जेक्ट में कॉइल हो जाते हैं, मीन्स लिपट जाते हैं, और प्लांट को सपोर्ट देते हैं ताकि प्लांट क्लाइंब अप कर सके. Conservation of water. In some plants such as cactus, leaves are modified into sharp pointed structures known as spines. They protect the plants from the being eaten by the animals. Spines also reduce the rate of transpiration. कुछ प्लांट जैसे कैक्टस के लीव्स शार्प पॉइंटेड स्ट्रक्चर में मॉडिफाइड हो जाते हैं, जिसे स्पाइन्स कहते हैं, यानी कांटों की तरह, क्योंकि डेजर्ट में जो प्लांट है वह कम उगते हैं ताकि जो एनिमल्स हैं वह प्लांट को खा न पाए और जो ट्रांसपिरेशन का रेट रिड्यूस हो सके, और स्पाइन्स वाटर के लॉस को रिड्यूस करता है. ट्रैपिंग द इंसेक्ट्स. इन सम प्लांट्स सच एज पिचर प्लांट, leaves are modified to perform pitcher-like structures for capturing insects. These plants grow in regions where the soil is deficient in nitrogen. To overcome this deficiency, these plants have developed mechanisms to trap insects and absorb the nitrogen content from their bodies. These plants are also called insectivorous or carnivorous plants. However, these plants also prepare their own food through photosynthesis. कुछ प्लांट जैसे पिचर प्लांट के लीव्स इस तरह मॉडिफाइड होते हैं जिससे वह इंसेक्ट को कैप्चर कर सके, जो कि पिचर लाइक स्ट्रक्चर जैसे होते हैं. यह प्लांट जिस रीजन में, जिस क्षेत्र में ग्रो करते हैं, वहाँ सॉइल में नाइट्रोजन की कमी होती है. जो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये इंसेक्ट्स को ट्रैप कर लेते हैं, मीन्स खा लेते हैं, और उनकी बॉडीज़ में से नाइट्रोजन ले लेते हैं, जिसे इंसेक्टिवायरस या कार्निवरस प्लांट कहा जाता है. ये प्लांट भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में अपना फूड बनाते हैं. Flowers are the most distinctive and attractive parts of many plants. They are colored, have pleasant fragrance, and contain nectar to attract the insect or animals. Flowers are the reproductive organ of flowering plant. A flower develops from a bud. It lives for a short time and then develops into a fruit. The fruit contains seeds which germinate into new plants when the conditions are suitable. फ्लावर प्लांट्स का एक अट्रैक्टिव पार्ट है जो कलरफुल होता है, जिसमें प्लेजेंट फ्रेगनेंस मीन्स सुगंध होती है, जिससे एनिमल्स और इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं. फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है प्लांट्स का, जो कि एक बड में से फ्लावर डेवलप होता है और फिर वह फ्रूट में डेवलप होता है. फ्रूट में सीड होते हैं, जिससे कि जब सीड को सूटेबल कंडीशन मिलती है तो वह जर्मिनेट होता है और न्यू प्लांट में ग्रो करता है. स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर. पार्ट्स ऑफ फ्लावर आर शोन इन फिगर. लेट्स सी इन दिस पिक्चर. स्टैमेन, द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर. इट इंक्लूड्स फिलामेंट एंड एंथर. Anther is the head of the stamen which produce pollen grains. They are generally yellow in color. Filament is a long slender structure that support the anther. जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो, स्टेमन एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, जो फिलामेंट और
एंथर को इंक्लूड करता है। एंथर क्या है? स्टेमन का हेड है जो पोलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करता है, जो येलो कलर के देख रहे हो आप। फिलामेंट एक लॉन्ग स्लेंडर स्ट्रक्चर है जो एंथर को सपोर्ट दे रहा है, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हो। पिस्टिल, द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, इट इंक्लूड्स स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। पिस्टिल एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, जो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी से इंक्लूड है। स्टिग्मा इज फाउंड एट द टिप ऑफ style and contain sticky substance which holds onto the pollen grains during pollination. स्टिग्मा स्टाइल के टिप में होता है और इसमें एक स्टिकी सब्सटेंस होता है जो पोलन ग्रेन्स को होल्ड रखता है पॉलिनेशन के दौरान। स्टाइल इज अ लॉन्ग थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट होल्ड द स्टिग्मा। स्टाइल एक लॉन्ग थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो स्टिग्मा को होल्ड रखता है। ओवरी इज द स्वॉलन बेस ऑफ पिस्टिल विच कंटेन ओवल्स। ओवरी जो है पिस्टिल का एक फुला हुआ सा बेस है जिसमें ओवल कंटेन होता है, एग सेल्स कंटेन होते हैं। पेटल्स, द ब्राइट कलर्ड पार्ट ऑफ द फ्लावर विच प्रोटेक्ट द इनर स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर एंड अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। पेटल्स एक पंखुड़ी मीन्स फ्लावर का एक ब्राइट कलर पार्ट है जो फ्लावर के इनर स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट रखता है और इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है पॉलिनेशन के लिए। सेपल्स, इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द फ्लावर दैट इज़ ग्रीन इन कलर। यह एक आउटर मोस्ट लेयर है फ्लावर का और ग्रीन कलर का होता है। थैलेमस, इट इज़ द अपर मोस्ट swollen पार्ट ऑफ द पेडिसल विच बियर्स द वेट ऑफ द फ्लावर। यह अपर मोस्ट swollen पार्ट है पेडिसल का जो फ्लावर के वेट को बियर्स करता है, मीन्स सहता है। पेडिसल, द थिन स्टॉक बाय विच फ्लावर इज अटैच्ड टू द स्टेम और ब्रांचेस ऑफ द प्लांट। यह एक थिन स्टॉक है जो फ्लावर को अटैच करता है स्टेम से और ब्रांचेस से। पॉलिनेशन, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन. It is aided by various pollination agents such as insect, birds, wind, and water. The flowers are brightly colored or have fragrance to attract the insect. When insects sit on the flower, the pollen stick to their body and legs. These gets dropped on other flowers when they move from one flower to the other, thereby facilitating pollination. Pollination is mainly of two types, self-pollination and cross-pollination. एंथर से स्टिग्मा में पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र होते हैं, उसे पॉलिनेशन कहा जाता है. इसके बहुत सारे एजेंट्स हैं जैसे इंसेक्ट्स, बर्ड्स, बीन्स एंड वाटर. फ्लावर्स ब्राइटली कलर के होते हैं और उसमें फ्रेगनेंस होते हैं जिसके कारण इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होते हैं. और जब इंसेक्ट्स फ्लावर में बैठते हैं तब पोलन स्टिक उनके बॉडी में या लेग में चिपक जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं. और जब वह इंसेक्ट्स दूसरे फ्लावर में मूव करते हैं तब पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है. और पॉलिनेशन टू टाइप्स के होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन. When pollen grains fall on the stigma of the same flower or another flower of the same plant, it is called self-pollination. When the pollens fall on the stigma of another flower on a different plant, it is called cross-pollination. जब पोलन ग्रेन्स सेम प्लांट के सेम फ्लावर या अनदर फ्लावर में स्टिग्मा तक पहुंच जाता है उसे सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं. और जब पोलन ग्रेन्स
अलग प्लांट के अनदर फ्लावर में स्टिग्मा तक पहुंच जाता है, उसे क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है, जैसा आप पिक्चर में देख सकते हो। In most of the plants, after pollination, the size of ovary increases and it changes into the fruit. The ovules change into seeds. The sepals, petals and stamens fall off. The fruit consists of an outer covering called pericarp and a fleshy pulp which contain the seeds. Seeds develop into new plant when provided with sufficient air, water and sunlight. पॉलिनेशन के बाद जब ओवरी का साइज इंक्रीज हो जाता है और वह फ्रूट में चेंज हो जाता है और ओव्यूल सीड्स में चेंज हो जाता है और सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन गिरने लगते हैं और फ्रूट का जो आउटर कवरिंग है उसे पेरिकार्प कहते हैं, जो फ्लैशी पल्प होता है जिसमें सीड कंटेन होती हैं और सीड न्यू प्लांट में ग्रो होता है जब उसे प्रॉपर अमाउंट में एयर, वाटर और सनलाइट मिलती है।